लेसन 2 थ्रेड्स ऑफ कानाकिसली के रोमांच। This dialogue is between two cousins, Dev and Suvigya. Dev has recently visited Kanakisli and is very excited. He wants to share his excitement and experience with his cousins. अनुवाद। यह संवाद दो चचेरे भाइयों देव और सुविज्ञ के बीच हुआ है। देव ने हाल ही में कानाकिसली का भ्रमण किया है और वह अत्यंत रोमांचित है। वह अपने रोमांच और अनुभवों को अपने चचेरे भाई के साथ बांटना चाहता है। देव: Suvigya, have you seen Kanakisli? Suvigya: what's that? Dev: oh, don't you know anything about it? It is very beautiful national park. अनुवाद। देव: Suvigya, क्या तुमने कानाकिसली देखा है? Suvigya: वह क्या है? देव: ओह, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है? यह एक बहुत सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। Suvigya: where is it situated? Dev: it is in Mandla district near Jabalpur in MP. It is 23 kilometers away from Balaghat. Suvigya: how can we reach there? Dev: we can reach there by bus. We can also get there by rail and even by air. The nearest railway station and airport in Jabalpur. अनुवाद। Suvigya: यह कहाँ स्थित है? देव: यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जबलपुर के निकट बालाघाट से 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। Suvigya: हम वहाँ कैसे पहुँचते हैं? देव: हम वहाँ बस से पहुँच सकते हैं। हम वहाँ रेल द्वारा और हवाई जहाज द्वारा भी पहुँच सकते हैं। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा जबलपुर है। Suvigya: Dev, tell me more about Kana. Dev: Kana National Park came into existence in 1955. Since then, it has been protected for its flora and fauna. It preserves the world wildlife species in abundance. It is known as one of the finest thousands during the park seasons. It is also a source of inspiration and attractions for the nature lovers. Suvigya: देव, मुझे कान्हा के विषय में और ज़्यादा बताओ। देव: कान्हा नेशनल पार्क 1955 में अस्तित्व में आया। तभी से इसके पेड़ पौधे और जंतु समूह के कारण इसे संरक्षित किया गया। वन जीव जंतुओं की ढेरों प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। यह एशिया के सबसे अधिक सुंदर व संचालित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह उपयुक्त मौसम में हजारों जंगल प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए प्रेरणा और आकर्षण का एक स्रोत भी है। Suvigya with surprise: how did you come to know about it? Dev: my uncle is a manager in MP State Tourism Department. At present, he is posted at Kanakisli. He invited us all to see it. So recently I visited Kanakisli with my parents. So what did you see there? If I went to Vagera log huts, Kisli, where my uncle
lives. Kisli has a dense forest with will foregrounds. Subhagya, with surprises. How did you come to know about it? Dev, my uncle is a manager in MP State Tourism Department. At present, he is posted at Kana Kisli. He invited us all to see it. So recently I visited Kana Kisli with my parents. Subhagya, what did you see there? Dev, I went to Vagera log huts, Kisli, where my uncle lives. Kisli has a dense forest with 12 voracious animals. Tourists go there and enjoy the natural scenery, jungles like wild animals and birds. शिवज्ञा आश्चर्य से, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? देव, मेरा चाचा मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रबंधक हैं। वर्तमान में वे कान्हा किसली में पदस्थ हैं। उन्होंने हम सबको इसे देखने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए हाल में ही मैंने अपने माता पिता के साथ कान्हा किसली का भ्रमण किया। सुबह, तुमने वहाँ क्या देखा? देव, मैं बघेरा कास्ट कुटी किसली गया, जहाँ मेरे चाचा रहते हैं। किसली में खतरनाक जानवर और घने जंगल। पर्यटक वहाँ जाते हैं और प्राकृतिक दृश्य, वन जीवन, जंगली जानवर एवं पक्षियों को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। Which animal did you see there? Oh, the most attractive creature of Kana Kisli National Park is a tiger. Luckily, I had a glimpse of the tigers. People go on elephant for locating tiger. It is really thrilling to see the tiger sitting or lying inside the densest bushes and hedges. I saw a tiger drinking water from the nearby rivulet. We happened to see a tiger along with her two cubs. Her eyes were flashing like glass balls. अनुवाद। शिवज्ञा, तुमने वहाँ कौन से जानवर देखे थे? ओह, कान्हा नेशनल पार्क का सबसे अधिक आकर्षक प्राणी बाघ है। सौभाग्यवश मुझे बाघ दिखाई दे गया। लोग बाघ को देखने के लिए हाथियों पर चढ़कर जाते हैं। बाघों को घने झाड़ियों और बाड़ों में बैठे हुए या लेटे हुए देखना वास्तव में रोमांच है। मैंने पास की छोटी नदी से एक बाघ को पानी पीते हुए देखा। हमें एक बंधन अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई दी। उसकी आंखें कांच जैसी चमक रही थीं। Subhagya, don't the tiger attack the tourist? They not generally. People enter the forest quickly. People and even children are instructed to keep quiet inside the jungle. We have to maintain some distance to अनुभव। Subhagya, क्या बाघ पर्यटकों पर आक्रमण नहीं करते? देव, आमतौर पर नहीं। लोग जंगल में शांतिपूर्वक प्रवेश करते हैं। लोगों और बच्चों को भी जंगल के भीतर चुप रहने के निर्देश दिए जाते हैं। हमें कुछ दूरियां भी बनाए रखनी पड़ती हैं। Subhagya, are not there some other animals? Yes, there are. We saw black bucks, cheetahs, sambars, deer, spotted deer, goats, horns, antelopes, and stags. It is the habitat of 20 species of mammals. There are lambs, squirrels, apes, monkeys, jackals,
bullpacks, bulldogs, Chosingas, hyenas and jungle cats in plenty. अनुवाद सुविज्ञ, क्या वहाँ कुछ अन्य जानवर नहीं हैं? देव, हाँ, वहाँ अन्य जानवर भी हैं। हमने काली हिरण, चीतल, सांभर हिरण, चीटीदार हिरण, गौर, सिंगदार हिरण और 12 सींगे देखे। यह 20 स्तनधारियों की शरण स्थली है। यहाँ ताड़ पर रहने वाली छोटी गिलहरियाँ, बंदर, लंगूर बंदर, गीदड़, जंगली चूअर, जंगली कुत्ते, चौसिंगार, लकड़बाघे और जंगली बिल्लियों बहुयात में हैं। सुविज्ञ, oh, it must be wonderful place to see. It is really worth seeing. Even the bird lovers enjoy the sight. There are 200 species of bird in Ghana. Water birds are visual near pools. Early morning and late afternoon are the best time for watching birds. Even common fowls, doves, hawks, eagles, pigeons, flycatchers, woodpeckers are abundantly found. इसका अर्थ है कि वह एक सुंदर देखने योग्य जगह है। यह वास्तव में दर्शनीय है। पक्षी प्रेमी भी इस स्थल का आनंद लेते हैं। घाना में पक्षियों की 200 प्रजातियां हैं। पानी में रहने वाले पक्षी तालाबों के निकट दिखाई देते हैं। जल्दी सुबह और दोपहर देर का समय पक्षियों को देखने के लिए सबसे उत्तम समय है। साधारण पक्षी खाता, बाज, गिद्ध, कबूतर, मक्खी पकड़ने वाले पक्षी, कठफोड़वा भी बहुयात में पाए जाते हैं। Thank you, Dave. You have told me of a pleasant and thrilling place. I shall make a plan to visit Ghana with my parents next summer vacation. They would try to reach Kisli before the sunset, since vehicles are not permitted in the park after the sunset. धन्यवाद देव, तुमने मुझे एक सुंदर और रोमांचक स्थान के बारे में बताया है। अगले ग्रीष्मकालीन अवकाशों में मैं अपने माता पिता के साथ घाना भ्रमण करने की योजना बनाऊंगा। लेकिन सूर्यास्त से पहले किसली पहुंचने का प्रयत्न करना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद पार्क में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। इस वीडियो में जो भी दिखाया जा रहा है, यदि आपको उसकी PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और PDF फाइल डाउनलोड कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।